Generally, in which two modes Python operates? कौन से दो मोड्स है जिसमें पाइथन वर्क करता है? Terminal mode and script mode. They are interactive mode and script mode. Interactive mode is the one जहाँ पे आप इनपुट देते हो और immediately आपको आउटपुट आ जाता है. That is the interactive mode. And the script mode where you are creating a new file, you are writing the script set of instructions over there, you are saving it with .py extension and you are executing. That is the script mode. List me some of the applications where Python has been used currently. कहाँ पे यूज होता है पाइथन? Could you please repeat the question again? Yes, I am asking list a few of the applications or software where Python is used currently. ऐसे कौन से एप्लीकेशन है, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर है जहाँ पे एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन यूज हो रहा है अभी? Python. इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन सब में जो यूज हो रहा है इस पर they may be not ask you this in the technical, but they may ask you these questions in the interview section. Okay. So now we'll see the next data type, that is string. What is string? String क्या है? Sequence of characters. Collection of characters. Yes, it is a collection of characters. How we can separate strings from other data types? You can separate it like any integer, float, anything you are assigning that is without single quote, double quote. But whenever you are assigning string or a character to the variable, that will be inside the single quote or inside the double quote. Fine. If I want to display a particular character from the string, what I should do? Lecture चालू है थोड़ा वेळ साडी कर ले. Yes, if I want to display a particular character only from a string, then what I should do? क्या कर सकते हैं? What I should do? क्या कर सकते हैं? Indexing. Index of that particular इंडेक्स पोजीशन यूज कर सकते हो आप. तो बेसिकली स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और वो जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है वो आपने देना है सिंगल कोट में या डबल कोट में. इफ यू वांट टू डिस्प्ले द होल स्ट्रिंग like I'm using a is equal to if I want to display this whole string, I will just enter a. It will show me the whole string. If I want to display a particular character from this string, then I have to make use of index positions. So index position क्या होती है? जैसे यहाँ पे hello नाम का एक string लिया हुआ है, तो index position मतलब वो कैरेक्टर का लोकेशन कौन सा है, पोजीशन कौन सा है, दैट इज नथिंग बट द इंडेक्स वैल्यू. So if for a traversing of string, you have two ways. Either you can traverse from the very first position or you can traverse from the last position. So you can traverse in forward or in backward. So जब आप forward में traverse कर रहे हो तो आपकी index हमेशा शुरू होती है with 0. So your H will be located at 0th position, E will be at first position and so on. But if you are traversing from the back from the last position, then your O will be at -1 position, this L will be at -2, this L at -3, then -4 and -5. तो ये चीज़ ध्यान में रखो, जब फॉरवर्ड में हो तो 0 से स्टार्ट करना है, जब बैकवर्ड से हो तो -1 से स्टार्ट करना है. Now
इफ़ यू वांट टू चेक लेंथ, जैसे हमने अभी वो असाइनमेंट में क्वेश्चन था कि लिस्ट का लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी हैव टू यूज द लेंथ फंक्शन, सेम फॉर द स्ट्रिंग एप्लीकेबल। जब आपको स्ट्रिंग का भी लेंथ कैलकुलेट करना होता है तो बस लेन फंक्शन यूज करो, और जहाँ पे आपने आपका स्ट्रिंग स्टोर किया है वो उसे पास कर दो। लेन इनसाइड ए, it will give you the number of characters of that particular string. In same way, if I want to now from this string ggsf, then what I should do now, मुझे f डिस्प्ले सकती हूँ। A यस, of minus 1. बैकवर्ड से अगर आपने शुरू किया है तो आप -1 दे सकते हो। और रिमेंबर दिस थिंग कि राउंड ब्रैकेट में इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करना है, आपको इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेसिफाई करना है। और अगर मैंने फॉरवर्ड में लिया तो क्या इंडेक्स क्या होगा? 3. 3. You're getting your particular that character. Now, see, अगर मुझे ये स्ट्रिंग में यहाँ पे जो f है यहाँ पे मुझे p करना है, तो क्या कर सकते हैं हम? GGSF है, मुझे GGSP करना है, तो क्या कर सकते हैं हम? विच ऑपरेशन आई शुड डू? कर सकते हैं क्या हम ऐसे? अगर मैंने No, लिखा ma'am. String a cannot be mutable. स्ट्रिंग, String is immutable. String is immutable. अगर मैंने लिखा a of 3 इज इक्वल टू p, see what they are saying, the string object does not support item assignment, strings are immutable। आपने एक बार string को जो कैरेक्टर्स असाइन कर दिए हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो अगर ऐसा असाइनमेंट दिया होगा आपके प्रोग्राम में तो वो इनवैलिड होगा। कीप दिस इन माइंड, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। आप स्ट्रिंग में कोई रेंज भी डिस्प्ले कर सकते हो, लाइक सी दिस थर्ड वन, मुझे डिस्प्ले करना है एस, ये जो हेलो मैंने स्टोर की लो में से मुझे सेकेंड फिफ्थ पोजीशन तक का कंटेंट डिस्प्ले करना है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड वाली जो आपको जो कैरेक्टर डिस्प्ले करना है उसका इंडेक्स वहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो इसको बोलते हैं स्लाइस ऑपरेटर। हाउ इज द सिंटैक्स? you have to first specify the variable name on which you are applying the operator। उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट देना है, जैसे आप आपके इसमें देते हो इंडेक्स पोजीशन के लिए देते हो। जैसे मैंने मुझे ए पे अप्लाई है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दिए पहले। अभी मुझे GGSF में से सेकेंड वाला जो जी है ना वहाँ से डिस्प्ले करवाना है और एफ तक डिस्प्ले करवाना है। तो मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स देनी पड़ेगी 1 कोलन, मुझे एफ तक डिस्प्ले करवाना है। सो 0 1 2 3, मेरा एंड पॉइंट होगा 3 एंड आई विल गेट माई आंसर। यू कैन ऑल्सो ट्राई वन मोर थिंग, अगर आपने ए कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट दिया, 1 दिया, कोलन दिया और उसको क्लोज कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया, फिर भी आपका आंसर आएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट कंसीडर द एंड पॉइंट एज द एंड कैरेक्टर ऑफ योर स्ट्रिंग। तो आप बस स्टार्टिंग पोजीशन भी आपने दे दी तो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट लाइक एवरी टाइम यू हैव टू मेंशन द स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। फाइन। Now you can try multiple examples of string, tuples, list, dictionary on Google. You just go on India Bix or Sun Foundry or Geeks for Geeks. You will get a variety of examples and you have to practice those examples only. जितने आप examples try करोगे, जितने codes आप execute करके देखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि हर एक syntax में difference क्या है, जहाँ पे हम mistakes निकाल सकते हैं और जहाँ पे मुझे output मिल सकता है। So I am considering that you people have already learned Python and I am just revising that कि string में क्या होता है, list में क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, but
during the period of this 8 days I am not able to cover everything. I am just revising. So at the back end you people also try examples by your own. प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप लोग या नहीं? Yes, ma'am. You have to practice by your own also. Yes, ma'am. वेट अ मिनट के ऊपर हम और भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक वी कैन कंबाइन टू और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर एंड वी कैन रिपीट अ स्ट्रिंग फॉर मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो. तो अगर मुझे दो स्ट्रिंग्स कॉन्केट करनी है, मीन्स मर्ज करनी है या कंबाइन करनी है, तो मुझे प्लस ऑपरेटर यूज करना है. लाइक अभी मैंने ए में जी जी एस एफ डाला है, तो मुझे करना है कंबाइन ए से. कंबाइन करना है तो मैं प्लस ऑपरेटर यूज करूंगी. तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख लिया और मुझे यहाँ पे लिखना है इंजीनियरिंग. तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और एंटर कर दिया. सो आई गॉट आंसर एज ए में जो भी कंटेंट था दैट इज जी जी एस एफ एंड देन आई हैव एडेड इंजीनियरिंग टू इट, सो इट गेट एडेड. But there is no space between these two. So if I want to get space, what I should do? A plus single quote or double quote. While mentioning that second string, give a space and then type whatever content you want to type and then give enter. So it will add the space inside your string. So this also you have to see as in that while second question you said ना I is equal to I plus equal to 1, तो वहाँ पे स्पेस था इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था. तो यहाँ पे भी स्पेस का मीनिंग क्या है वो ध्यान में रखो. अगर आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया तो कॉम्बिनेशन करते टाइम, कॉन्केटिनेशन करते टाइम आपके दोनों स्ट्रिंग्स में गैप नहीं रहेगा. तो अगर आपको गैप देना है तो यहाँ पे आपको स्पेस देना पड़ेगा. तो स्पेस है यहाँ पे दूसरे स्ट्रिंग में तो यहाँ पे स्पेस जनरेट होगा, नहीं है तो इट विल बी डिस्प्लेड एट अ सिंगल स्ट्रिंग ओनली. सो दिस इज फॉर प्लस. प्लस करके आप कॉन्केटिनेट कर सकते हो. अगर आपको रिपीट करना है तो आपने स्टार यूज करना है और स्टार के बाद एस्ट्रिक के बाद आपको वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग कितने बार रिपीट करवाना है वो उसका काउंट यहाँ पे स्पेसिफाई करना है. अगर मुझे ये ए वाली जो मेरी स्ट्रिंग है उसको रिपीट करवाना है फॉर द 7 टाइम्स, आई विल राइट डाउन 7 एंड आई विल गिव एंटर. इट विल गेट रिपीटेड फॉर द 7 टाइम्स. सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग्स. द नेक्स्ट इज लिस्ट डेटा टाइप. जैसे सी सी प्लस प्लस में एरे होता है ना. व्हाट इज एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स टुगेदर, बट एवरी एलिमेंट विच यू आर गोइंग टू स्टोर इनसाइड एरे विल बी ऑफ सेम टाइप. एरे में हम ऐसा कर सकते थे क्या कि कॉम्प्लेक्स का एक एलिमेंट ले ले भाई, एक स्ट्रिंग वाला ले ले, एक इंटीजर वाला ले ले. No, it is not possible inside the array, but in Python they have given you this privilege that you can combine the items of multiple data types together inside a entity, and that entity is nothing but the list. तो list क्या है? एक डेटा टाइप है जिस डेटा टाइप में आप मल्टीपल आइटम्स कंबाइन कर सकते हो, दैट टू ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जब आप लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने होते हैं और लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स है वो आपको कॉमा से सेपरेट करने होते हैं. तो इट इज नॉट लाइक एवरी टाइम यू विल क्रिएट अ लिस्ट एंड दोज लिस्ट शुड हैव एलिमेंट्स. यू कैन क्रिएट एम्प्टी लिस्ट ऑल्सो. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है माई लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इट विल ऑल्सो क्रिएट अ लिस्ट. ठीक है, लेकिन वो क्या होगा? एम्प्टी लिस्ट होगा. आप लिस्ट इंटीजर्स की बना सकते हो, लेकिन जो भी इंटीजर्स होंगे वो आपको कॉमा से सेपरेट करते जाने हैं. आप मिक्स्ड डेटा टाइप की भी बना सकते हो, बट अगर उसमें स्ट्रिंग है तो वो कोर्स में देना है, ये ध्यान में रखो. आप नेस्टेड लिस्ट भी करवा सकते हो, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट भी ऐड करवा सकते हो. जैसे हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे होता था, 2 डायमेंशनल एरे होता था, वैसे हम लिस्ट को भी नेस्ट कर सकते हैं, दैट इज नेस्टेड लिस्ट. से दिस वन एल नाम का एक लिस्ट है जिसमें ये 3 एलिमेंट्स है. मुझे अगर इसको डिस्प्ले करवाना है आई विल सिंपली राइट डाउन एल.
अभी यहाँ पे मैं प्रिंट एल क्यू नहीं लिख रही क्योंकि ये मेरा इंटरैक्टिव मोड है। ये समझ में आ गया ना आपको? ये थ्री ग्रेटर देन साइन जहाँ पे होते हैं वो इंटरैक्टिव होता है, उसको बस इनपुट देना है, आउटपुट आ जाता है। आपने प्रिंट लिखा तो भी वो डिस्प्ले करेगा, और सिंपली आपने एल लिखा तो भी वो डिस्प्ले करेगा। तो अगर लिस्ट को भी डिस्प्ले करवाना है तो प्रिंट और लिस्ट का जो वेरिएबल है, आपका लिस्ट का जो नेम है उसको डाल दो वहाँ पे, लिस्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। सेम अगर आपको लिस्ट में से कोई भी एक आध एलिमेंट डिस्प्ले करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट की आपको इंडेक्स पोजीशन स्पेसिफाई करनी होगी। जैसे अभी ये 1 2 3 डिस्प्ले करवाना था तो यहाँ पे लिखा गया एल ऑफ 0, एल में से 0 इंडेक्स पोजीशन का जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कर दो। नेस्टेड लिस्ट में देखो, अभी एक डीडीएल नाम का लिस्ट है, उसमें 1 2 3 नाम का एक लिस्ट है, देन 4 5 6 वाला एक लिस्ट है, 7 8 9 वाला एक लिस्ट है। ओके, इसको डिस्प्ले कर दिया उन्होंने, पहले डिस्प्ले हो गया जैसे है वैसा। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, डी डी एल फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा। तो इसमें पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना वो क्या करेगा, आपके लिस्ट में से सेकेंड पोजीशन पे जो है ना वहां पे जाएगा। तो मेरे ये लिस्ट में दिस 1 2 3 इज एट जीरो पोजिशन, 4 5 6 एट फर्स्ट पोजीशन एंड 7 8 9 इज एट माय सेकेंड पोजीशन। तो 2 जब एग्जीक्यूट होगा तो मेरा पॉइंटर जाएगा 7 8 9 में। उसके बाद ये जो 1 है ना, दिस विल पॉइंट आउट टू द इंडेक्स पोजीशन ऑफ दैट नेक्स्ट इंडेक्स्ड लिस्ट ओनली। तो यहाँ पे मैंने 2 को पॉइंट आउट किया है, तो 7 8 9 में जाएगा वो, और 7 8 9 में से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डिस्प्ले होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 8 है। फर्स्ट मतलब वेरी फर्स्ट नहीं, फर्स्ट इज अगेन द इंडेक्स पोजीशन। तो सेकेंड में आपका जो लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है, वो 7 8 9 वाला था। उसमें से फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन का कौन सा एलिमेंट है, 7 जीरोथ पे है, 8 1 पे है, एंड देन 9 इज एट सेकेंड। तो फर्स्ट पे हमारा 8 है, दैट्स व्हाई द आंसर इज 8। नेस्टेड लिस्ट समझ में आ गया है? Yes. Yes, ma'am. ठीक है। पहला जो इंडेक्स पोजीशन होगा वो हमारे कॉमन, आपकी पहली जो लिस्ट है ना उसके इंडेक्स वैल्यू को मैप करेगा, लेकिन दूसरी जो इंडेक्स वैल्यू होती है ना आपकी, वो पहले इंडेक्स वैल्यू को ही रिलेट करती है। the correlation between both the index values that you have to learn and remember well. The next data type is tuple. Tuple is again a sequence of item. डिफरेंस इज व्हाट, लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट देते हो, टपल्स में आपने राउंड ब्रैकेट्स देने हैं। सेम कॉमा यूज करना है आइटम सेपरेशन के लिए। आपको टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है पता है? Tuples cannot be updated. यस, List टपल्स, can be updated. हाँ, लिस्ट म्यूटेबल है, लिस्ट में आप एलिमेंट्स डाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। टपल में नहीं कर सकते। टपल में एक बार जो दे दिया उसको आप चेक, अगर मैंने T1 नाम का एक लिया टपल, उसमें मैंने डाला 1 6 6 7 8, ये मेरा टपल क्रिएट हो गया। अभी T1 वाला जो मेरा इंडेक्स है उस पे मैंने जीरो पोजीशन पे जो 1 डाला है ना, मुझे वो 1 नहीं डालना, वहाँ पे मुझे डालना है 3। तो मैंने लिखा T1 का जो जीरो पोजीशन है वहाँ को 3 असाइन करो। अगर मैंने एंटर किया इट विल गिव द एरर लाइक टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, जिसे हमें स्ट्रिंग में आया था। तो स्ट्रिंग एंड टपल बोथ आर इम्यूटेबल, उसको आपने वंस क्रिएट कर लिया उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसे कुछ नहीं है कि टपल में मिक्स डेटा टाइप वाले वैल्यू डाल सकते हो और लिस्ट में नहीं डाल सकते। दोनों में आप मिक्स वैल्यूज डाल सकते हो किसी भी डेटा टाइप के। डिफरेंस बस उसके सिंटैक्स में है कि कहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और कहीं पे राउंड है, एंड द म्यूटेबल इम्यूटेबल इज द डिफरेंस। देन सेट हो गया, सेट इज वन मोर। अभी सेट का क्या है कि सेट है ना आपके डिक्शनरी, टपल और लिस्ट से थोड़ा डिफरेंट है। लिस्ट में आप जब लिस्ट प्रिंट करते हो ना तो जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट दिए हैं ना उसी ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे। सेम फॉर टपल एंड डिक्शनरी।
लेकिन सेट में क्या होता है, सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या होता है, सेट के जो एलिमेंट्स है जो आपने जो सीक्वेंस में दिए हैं ना, वो सीक्वेंस में डिस्प्ले नहीं होते, वो अनऑर्डर्ड होते हैं, जितने हैं उतने होते हैं लेकिन अनऑर्डर्ड होते हैं, इसलिए सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और सेट के जो आइटम्स होते हैं वो हमें करली ब्रेसेस में देने होते हैं। वी विल ट्राई, एंड इट इज़ नॉट एवरी टाइम, हाँ इट इज़ अनऑर्डर्ड। तो कभी कभी बाई चांस आपके ऑर्डर में आ भी जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। अगर मैंने सेट वन करके एक सेट लिया इक्वल टू, मैंने सेट में आइटम्स डाल दिए 1 2 3 4, और मैंने सेट वन डिस्प्ले किया। अभी देखो मेरे सब एलिमेंट्स ऑर्डर में आ रहे हैं, बट समटाइम्स इट मे हैपन दैट कि वो अनऑर्डर्ड हो सकता है, बिकॉज इट्स डेफिनेशन ओनली सेट्स दैट इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन। सेट का भी वैसे ही है, सेट के कुछ प्री डिफाइंड ये है मेथड्स है, वो भी आप नेट पे सर्च करो। सेट पे ज़्यादा कुछ नहीं है, सेट का आप इंटरसेक्शन कर सकते हो, देन सेट का यूनियन कर सकते हो, ऐसे कुछ ऑपरेशंस है सेट पे। तो जब हमारा पूरा सिलेबस फाइल हैंडलिंग तक हो जाएगा ना, तब हम एक एक डेटा टाइप के मेथड्स कौन से हैं, उसके ऑपरेटर्स कौन से हैं, हर एक चीज़ के एग्जांपल्स भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तब तक ये ध्यान में रखो कि सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, अगेन कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स होता है, बट लिस्ट टपल और सेट में क्या होता है, हम आइटम स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन डिक्शनरी में जो आपका एक आइटम होता है, दैट आइटम यू हैव टू कैटेगराइज एज अ पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। जैसे हम लिखते हैं ना, नेम इज इक्वल टू आपका जो भी नाम है, डिवीजन इज इक्वल टू आपकी डिवीजन ए बी, आपका रोल नंबर। तो नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ये क्या हो गए, आपकी कीज हो गई, और उसकी जो भी आपने वैल्यू प्लेस की है, दैट इज द वैल्यू। तो डिक्शनरी में जब भी आप डेटा प्लेस करते हो, तो आपको की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में देना होता है। और अगर आपकी की और वैल्यू में आप नंबर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग कुछ भी यूज कर सकते हो, बट जब भी आप स्ट्रिंग यूज करते हो की के लिए या वैल्यू के लिए, तो उसको आपने कोट्स में देना है, ये ध्यान में रखो। डिक्शनरी के लिए करली ब्रैकेट यूज होते हैं, अगेन आइटम सेपरेट करने के लिए कॉमा ही यूज होता है, बट जो की एंड वैल्यू का पेयर है ना, तो की को और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए वहां पे कोलन यूज होता है। यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, D1 नाम का यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाया है। नेम एंड क्लास, ये क्या हो गए, कीज है या वैल्यूज है, Key. वो कीज हो गए आपके। एंड 10 एंड 9 आर माई वैल्यू। तो की एंड वैल्यू को कोलन से सेपरेट किया हुआ है, और ये पूरे एक पेयर को कॉमा से सेपरेट किया है, ठीक है। हम एक डिक्शनरी बना के देखते हैं। दिस डिक्शनरी आई हैव क्रिएटेड, आई वांट टू प्रिंट इट। ओके, प्रिंट कर दिया। D1 डॉट कीज, अगर मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरे इसमें जितने भी कीज है ना आपके इसमें, वो डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर आपने D1 डॉट वैल्यूज किया, तो जो भी वैल्यूज है, तो मेरे पास ABC and 11 ये भी वैल्यूज थी, तो वो वैल्यूज डिस्प्ले हो गई। अगर मुझे D1 मेरे डिक्शनरी में से नेम का जो मेरा की है ना, उसकी वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवानी है। Name आ गया ABC. So these are few of the methods. Again there are variety of methods for dictionary too. तो आपको क्या करना है, अगर आपके डिक्शनरी में से आपको कोई वैल्यू डिस्प्ले करवाना है ना, तो वो वैल्यू के लिए आपको उसका की ढूंढना है पहले, कि जो वैल्यू आपने स्पेसिफाई की है उसका की कौन सा है,
और वो एज अ इंडेक्स, जैसे हम 0 1 2 इंडेक्स देते हैं ना टपल के लिए, लिस्ट के लिए, तो डिक्शनरी में आपको की मेंशन करना है। तो अगर मैंने दिया D1, देखो यहाँ पे दिया है D1 इन ब्रैकेट नेम, तो नेम की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो गई, दैट इज मनस्वी। अगर आपको आपने डिक्शनरी में जितने भी कीज है वो डिस्प्ले करना है तो आपको लिखना है D1 डॉट कीज। वैल्यूज डिस्प्ले करवाना है तो आपने लिखना है D1 डॉट वैल्यूज। तो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्या है, कुछ जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं, कुछ जगह पे मेथड यूज करने के लिए डॉट यूज होता है, कुछ जगह जगह पे बस मेथड यूज किया तो भी चलता है। कहीं कहीं इसमें क्या होता है कि आपको वेरिएबल का नाम, लिस्ट का नाम, टपल का नाम लेना पड़ता है, देन डॉट करके मेथड का नाम लिखना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको ध्यान में रहेगा कि कहाँ पे क्या यूज करना है आपको। तो ये डिक्शनरी हो गई। देन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, तो आपको ये पता है अभी कि म्यूटेबल मतलब उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, इम्यूटेबल मतलब मैंने चेंजेस नहीं करना है, मैं कर ही नहीं सकती चेंजेस। तो इम्यूटेबल क्या क्या है, तो इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, यूनिकोड, टपल्स आर द इम्यूटेबल। वंस यू हैव असाइंड वैल्यू यू वोंट एबल टू चेंज इट। जैसे टपल, यहाँ पे एक टपल क्रिएट किया है और ये टपल के जीरोथ पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे अगर मैंने 4 डालने की कोशिश की तो वो बोलेगा कि इट इज़ नॉट सपोर्टिंग आइटम असाइनमेंट। तो टपल में आप नहीं कर सकते, टपल इम्यूटेबल है। सेम, अगर आपने कोई मैसेज लिया, मैसेज इज इक्वल टू वेलकम टू गिग्स फॉर गिग्स, ये आपने लिखा, और ये मैसेज के यहाँ पे जो डब्ल्यू है जीरोथ पोजीशन पे, उसको आई वांट टू रिप्लेस विद पी, तो नहीं होगा, अगेन इट इज नॉट सपोर्टिंग आइटम असाइनमेंट। तो म्यूटेबल में क्या क्या आता है, आप डिक्शनरी में चेंजेस कर सकते हो, सेट में कर सकते हो, लिस्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब ये लिस्ट है, तो ये कलर का एक लिस्ट मैंने लिया, और यहाँ पे जो रेड है वहाँ पे मैंने पिंक डालना है, तो कलर ऑफ 0 इज इक्वल टू मैंने पिंक कर दिया, एंड कलर ऑफ -1 पे मैंने ऑरेंज कर दिया, मतलब ग्रीन के जगह पे मैंने ऑरेंज किया। इट विल गेट एग्जीक्यूट बिकॉज लिस्ट आप अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा पिंक, ब्लू एंड ऑरेंज। ओके, सो डेटा टाइप्स वी हैव डन विद डेटा टाइप्स। आपको डेटा टाइप्स में कोई डाउट है अभी? In today's assignment, I will search for the methods of all these data types and I will put the question for that different methods. Okay, so that you will get practiced with that. And by your own also you search for some questions and you practice those questions. Data type में कुछ doubt है? No, ma'am. नेक्स्ट वी हैव टू सी ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन की, जो भी हम डेटा टाइप्स अभी यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेटा टाइप्स में ऑपरेटर्स कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है, जो भी हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, कोई भी हम नंबर्स दे रहे हैं, कोई भी हम इनपुट डेटा ले रहे हैं, उस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, दिस 4 + 5 है, तो प्लस ये ऑपरेशन है मेरा, वो एडिशन इज माय ऑपरेशन, वो एडिशन करने के लिए मैं मुझे प्लस ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, एंड 4 and 5 आर माय ऑपरेंड्स। ओके, तो जो सिंबल हम यूज करते हैं ना किसी पर्पस के लिए, तो उसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो पाइथन में कौन से ऑपरेटर्स है, तो आपके पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से आपके? Addition, plus, minus, division, multiplication. यस, सी प्लस है आपके पास, माइनस है, एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन है, सिंगल स्लैश फॉर डिवीजन है जो आपको क्वेश्चन देगा, मॉड है जो आपको रिमाइंडर देगा, डबल एस्ट्रिक जो आपको एक्सपोनेंट रेस टू वाली वैल्यू देगा, और डबल स्लैश जो आपको डिवीजन ही देगा, बट डिवीजन का जो रिजल्ट है आपका, वो आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी कंपैरिजन बोलो मुझे, कंपैरिजन कौन से? Greater than, less than, double, equal to.
Not equal to. Yes, can double equal to and not equal to will be there in comparison, then what will be there inside assignment? Equal to. यस, तो जहाँ पे आप दो नंबर में दो स्ट्रिंग्स में कंपैरिजन करते हो तो वो सब आपका आता है इनसाइड द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यू विल हैव डबल इक्वल टू, जैसे हम कंपेयर करते हैं कि दोनों नंबर्स की वैल्यू सेम है क्या। नॉट इक्वल टू हम यूज करते हैं, देन लेस देन ग्रेटर देन हम यूज करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, तो बेसिकली जनरली हम इक्वल टू यूज करते हैं कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए। और इन एडिशन टू दैट यू कैन ऑल्सो यूज द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, लाइक प्लस इज इक्वल टू मीन्स, यहाँ पे देखो सी प्लस इक्वल टू ए है, इसका मतलब क्या हो गया, सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो इनको आप असाइनमेंट भी बोल सकते हो, और अगर वहाँ पे शॉर्ट हैंड हुआ तो इनको शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखो। तो these are the assignment operator। then bitwise operator also we have। तो bitwise में क्या है, and है, और है, XOR है, निगेशन है, नॉट है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। तो बिटवाइज मतलब क्या, जहाँ पे आपको आपने इंटीजर नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू परफॉर्म दोज ऑपरेशन बिटवाइज। ये चीज ध्यान में रखो, बिटवाइज मतलब क्या होगा, डेसिमल को बाइनरी करना होगा एंड देन परफॉर्म करना होगा। तो ये एंड और एक्स और नॉट आपको आता है ना। Yes, ma'am. आपने डेल्ड में सीखा होगा वो टेबल। एंड का रिजल्ट वन कब आता है? When both the output means both the input are one. यस, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर वन देन आउटपुट इज वन। और के केस में क्या होता है? If any one input is one, then output will be one. यस, एटलीस्ट वन इनपुट शुड बी वन, एंड सेम फॉर अदर्स। एक्सक्यूज मी, हाँ। एग्जीक्यूट करना है, डिस्प्ले करना है। इफ एल्स आप यूज करते हो जहाँ पे आपके पास दो टास्क है कि कंडीशन ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट करना है। देन आपके पास होता है नेस्टेड इफ, जहाँ पे आपको मल्टीपल इफ कंडीशन चेक करनी होती है, एक के बाद एक, तो वहां पे नेस्टेड इफ लगता है। और जहाँ पे आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज मल्टीपल कंडीशंस यू हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स टू बी डिस्प्लेड, देन यू विल गो फॉर इफ एल्स लैडर, और द लास्ट वन इफ एल्स स्टेटमेंट। सो विल सी द सिंपल इफ फर्स्ट। तो सिंपल इफ में आपकी कंडीशन पहले चेक होती है। ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका प्रोग्राम डायरेक्टली एंड होता है। ठीक है, तो सिंपल इफ में एक ही कंडीशन होती है, और वो कंडीशन अगर ट्रू है तो एक ही स्टेटमेंट जो आपने नीचे लिखा होता है उसके वो एग्जीक्यूट होता है। So see here, the value of n is given as 10, n is equal to 10 यहाँ पे दिया है। then n की वैल्यू चेक की गई है यहाँ पे, if n mod 2 is equal to 0, ये मेरा कंडीशन है। अगर ये completely divisible है then I will print n is an even number। ठीक है। तो इफ ये मेरी एक कंडीशन है और उसके रिलेटेड ये मेरा स्टेटमेंट है। अगर n इज इक्वल टू 10 यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होता तो कैन दिस प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूट, होगा क्या एग्जीक्यूट? एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, सो व्हाट आई एम आस्किंग, जब अगर मैंने n इज इक्वल टू 10 यहाँ पे नहीं लिखा तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा क्या? No. It No. will not get execute. So whatever variable you are checking inside the condition, that variable first you have to initialize also। तो प्रोग्राम में ये भी देखो कि इनिशियलाइजेशन किया है क्या।
नहीं तो बस कंडीशन देखोगे और उसके रिलेटेड स्टेटमेंट पढ़ के आउटपुट क्या होगा वो टिक कर दोगे। इनिशियलाइजेशन है क्या, कंडीशन प्रॉपर है क्या, कोलन दिया हुआ है क्या, इंडेंटेशन है क्या, सब कुछ आपने चेक करना है एंड देन आंसर सिलेक्ट करना है विच वन इज द करेक्ट वन। देन इफ एल्स, तो इफ एल्स कहाँ पे है, जहाँ पे आपके पास दो टास्क है डिपेंडिंग अपॉन सिंगल कंडीशन, कि ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो क्या करना है, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो क्या करना है, तो वहां पे इफ एल्स होता है। So first you will check your text expression. If it is true, execute its body. If it is false, execute the body of else part. And at the last you have to stop. तो मैंने 5 एक एलिमेंट ले लिया। अगर 5 मेरा 2 से मॉड होता है, if condition is true, then I want to display that it is even. Else I want to display that it is odd. तो एल्स में कंडीशन देने की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि एल्स में हम फॉल्स वाला पार्ट लिखते हैं। तो अगर ट्रू नहीं है तो वैसे भी फॉल्स है, तो डायरेक्टली फॉल्स होने पे क्या करना है वो लिख दो, कंडीशन क्यों लिखना है। ठीक है, तो एल्स में कंडीशन नहीं होता, बट एल्स के बाद कोलन जरूर होता है। हाँ, जैसे इफ के कंडीशन के बाद कोलन होता है वैसे एल्स में भी कोलन होता है। तो सिंटैक्स प्रॉपरली चेक कर लेना। देन नेस्टेड इफ, कभी कभी हम क्या करते हैं, सी कंपेयर एनी 3 नंबर्स कि कौन सा ग्रेटर है। ए बी सी, मेरे पास 3 नंबर है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, ए को बी से कंपेयर करूंगी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये मैंने चेक किया। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। तो अगर ए बी से बड़ा है तो मैं डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करूंगी कि ए इज ग्रेटर, मुझे ए को सी से भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद मैं आगे जाऊंगी कि ए सी से भी ग्रेटर है क्या। तो ये क्या होगा, मैंने एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिखा। तो दिस इज नथिंग बट द nested if. Inside a single if statement you can nest, you can write down multiple if statements. तो उसका कंडीशन कैसे होता है, पहला इफ उसका कंडीशन कोलन नेक्स्ट इफ उसका कंडीशन, ऐसे आपको करते जाना है। दैट इज नेस्टेड इफ। सी same program is given over here. A is equal to 5, B is equal to 10 and C is equal to 15। तो मुझे कौन सा ग्रेटर है वो कैलकुलेट करना है। तो पहले मैंने A को B से कंपेयर किया, वो ट्रू आया तो मैंने दूसरे इफ में, ये वाले इफ में ये दूसरा इफ डाला है। दिस इज नथिंग बट नेस्टेड इफ, इसको बोलते हैं नेस्टेड। जब आपको टू कंडीशन एट अ टाइम चेक करनी है, बट कैसे, पहली ट्रू है देन ओनली सेकेंड वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऐसे जब होगा वहां पे नेस्टेड इफ यूज करना है। देन लास्ट वाला है इफ एलिफ एल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्स इफ लैडर, जहाँ पे मल्टीपल इफ होते हैं, मल्टीपल एलिफ होते हैं। तो पहला वाला आपका जो कंडीशन होता है वो इफ से शुरू होता है, लास्ट वाला जो होता है वहां पे आपका एल्स होता है, और इन बिटवीन आपके जितने भी कंडीशंस होते हैं वो आप एल इफ से देते हो। तो इफ के आगे कंडीशन होता है, एलिफ के आगे भी कंडीशन होता है, बस एल्स के आगे कंडीशन नहीं होता। ठीक है, तो ये वाले कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे हमको ग्रेड्स डिस्प्ले करने हैं, आपको सैलरी वाइज प्रोफेसर कौन से लेवल पे है वो डिस्प्ले करने हैं, और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन डिस्प्ले करवानी है। तो वहाँ पे आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड होते हैं। तो वहाँ पे इफ एलिफ एल्स यूज होता है, एल्स इफ लैडर यूज होता है। नेक्स्ट है लूपिंग स्टेटमेंट। तो जब भी आपको एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम डिस्प्ले करवाना है, तो 100 बार डिस्प्ले करवाना है तो 100 बार एक ही स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगी, तो वहां पे हम यूज करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग इज नथिंग बट द रिपीटेशन स्टेटमेंट। इफ यू वांट टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल टाइम्स, you will go for this loops. We have for loop and we have while loop also, but we don't have do while loop inside the Python. We just have for and while loop. For today we'll stop here. आपको अब तक कोई डाउट है तो पूछ लो,
लूपिंग स्टेटमेंट हम कल से शुरू करेंगे। अभी ये जो लास्ट टॉपिक था यहाँ तक के क्वेश्चन में सेकेंड असाइनमेंट में पोस्ट कर देती हूँ, वो कल तक आपने अपलोड कर देना है। कोई डाउट है अब तक? No, No. ma'am. ओके, सो मैंने जो आपको इंडिया बिक्स बोला है, सैन फाउंड्री बोला है, गिग्स फॉर गिग्स बोला है, तो वहाँ पे जाके आपने बस पाइथन एमसीक्यू क्वेश्चन और पाइथन कोड्स ऐसे डालना है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगर आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है तो ऑनलाइन एडिटर भी है, वहाँ पे भी आप प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, बट प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। दिस इज़ द ओनली चांस यू आर गेटिंग इन द थर्ड ईयर। ठीक है, आपको अभी चांस मिल रहा है प्लेसमेंट होने का, और वो भी अच्छी कंपनी में, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो। कुछ डाउट है तो पूछो, सॉल्व कर लो। बस ये ध्यान में रखो को आपको कि आपको क्रैक करना है जो भी होगा। ठीक है, Yes, ma'am. तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं सेकेंड असाइनमेंट पोस्ट करती हूँ, और अब तक का जो है वो ट्राई करो आप घर में, और कुछ डाउट हो तो कल हम वैसे डिस्कस कर लेंगे। कल से हम लूपिंग स्टेटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, ओके मैम। Okay, ma'am. ओके Okay, ma'am. ओके। कोई डाउट नहीं है ना, या फास्ट नहीं हो रहा है ना? नो मैम। नो मैम। No. ओके, ठीक है, थैंक यू, देन विल सी यू इन टुमारोज लेक्चर। Thank you, ma'am. थैंक यू Thank you.